दोस्तों, एम्बर जॉनी केस ट्रायल के आखिरी दिन कैमिल वास्केज ने क्लोजिंग स्टेटमेंट देकर एक बहुत गहरा और ठोस प्रभाव इस केस पर डाला है, जो इस केस की एक बहुत बड़ी सेंसेशन बना हुआ है। इसे सुनना बड़ा जरूरी है। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट इस केस में दोषी और पीड़ित को शीशे की तरह साफ चित्रित कर देती है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा काम है दोस्तों। वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दीजिए और उसके पास वाला घंटी का बटन भी। कितना टाइम लगा होगा? मुश्किल से 2 सेकंड। अब जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Unlike Mr. Depp, who you heard admit to and own up to his past mistakes and his struggles, particularly with drugs and alcohol, Ms. Heard will not admit that she has ever done anything wrong. But she cannot deny what you heard on those recordings. As much as Ms. Heard and her lawyers have tried to make this case about Mr. Depp's language, it is Ms. Heard that repeatedly admits to violence. When you catch Ms. Heard in a lie, she tries to cover it up with more lies. So let's talk about the giant lie at the heart of this case. Ms. Heard's claim that Mr. Depp is an abusive monster and that she is a public figure representing domestic abuse. She spun a story of shocking, overwhelming, brutal abuse. She came into this courtroom prepared to give the performance of her life, and she gave it. Ms. Heard's acting coach, Christina Sexton, testified that Ms. Heard has difficulty crying when she is acting. You saw it. Ms. Heard sobbing without tears, while spinning elaborate, exaggerated, fantastical accounts of abuse and everything going on in her mind almost a decade prior while enduring that abuse. It was a performance. But this case doesn't come down to whether you believe Ms. Heard or you believe Mr. Depp. This case comes down to whether you believe Ms. Heard or you believe Mr. Depp, Christy Dombrowski, Sean Bett, Malcolm Connolly, Travis McGivern, Starling Jenkins, Keenan Wyatt, Dr. Kipper, nurses Debbie Lloyd and Aaron Filati, Tara Roberts, Ben King, Kate James, Kate Moss, Dr. Colber, Morgan Knight, Morgan Tremaine, Officers Melissa Sines, Officers Tyler Haddon, Officer William Gatlin, and Beverly Leonard. What Ms. Heard testified to in this courtroom is the story of far too many women. But the overwhelming evidence and weight of that evidence shows that it's not her story. It's not Ms. Heard's story. It was an act of profound cruelty, not just to Mr. Depp, but to true survivors of domestic abuse. For Ms. Heard to hold herself out as a public figure representing domestic abuse. It was false, it was defamatory, and it caused irreparable harm. उन्होंने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट की शुरुआत करते हुए कहा कि एम्बर की टेस्टिमोनी एक एक्टिंग परफॉर्मेंस है और यह अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होकर कोर्ट में आई थी और वही यहाँ उन्होंने किया है। एम्बर की एक्टिंग कोच क्रिस्टीना सेक्सटन ने ये गवाही दी है कि एक्टिंग के दौरान एम्बर असली आंसू नहीं बहा सकती थी और इसमें उन्हें बहुत दिक्कत आती थी। आप सबने ये देखा है कि इतने बड़े बड़े और बढ़ा चढ़ाकर अपने ऊपर हुए घरेलू हिंसा के इंसिडेंट्स को बताते हुए पूरी कोशिश करने के बाद भी वो एक भी आंसू नहीं गिरा पाई। कैमिल ने कहा कि एम्बर ने जॉनी की सोते हुए, उठते बैठते हुए सब तरह की फोटोज खींच ली थी, पर जो चोटें वो बताती है कि मारपीट के दौरान उसे लगी थी, उनकी एक भी पिक्चर उसके पास नहीं है। वह पहाड़ जितना बड़ा शोषण अपने ऊपर होने की बात कहती है, लेकिन कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है जो वो यहाँ कोर्ट में दिखा सके। एम्बर के पास इतने मेडिकल एक्सपर्ट हमेशा मौजूद रहते थे, जैसे कि डॉक्टर किपर, डेबी लॉयड, एम्बर की पर्सनल नर्स एरन फिलोटी, और फिर भी कोई मेडिकल सबूत नहीं है कि उन्हें कोई चोट लगी थी। फिर कैमिल ने सबूत दिखाए कि गलत भाषा का प्रयोग करने पर जॉनी माफी मांग रहे हैं और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में आपने सुनी उनमें फिजिकल वायलेंस के लिए एम्बर जॉनी से माफी मांग रही है कि वो फिर कभी उन्हें नहीं मारेगी। मिस्टर डेप का कोई भी ऐसा बयान किसी रिकॉर्डिंग में नहीं है जिसमें उन्होंने फिजिकल वायलेंस करके एम्बर से माफी मांगी हो या फिर कोई जिक्र किया हो, क्योंकि वो फिजिकल वायलेंस एम्बर पर कभी करते ही नहीं थे। एम्बर ने आज इस कोर्ट रूम में कहा कि 2012 से ही जॉनी डेप उनके साथ मारपीट करने लगे थे, जबकि पहले अपनी टेस्टिमोनी में एम्बर ने कहा था कि उन्होंने अपना पहला साल स्वर्ग की तरह प्रसन्नता और खुशी से मनाया था।
और इस रिलेशनशिप में जहां वो आज बता रही हैं कि पहले दिन से उनके साथ मारपीट हो रही थी, उन्होंने एक चाकू अपने पति को गिफ्ट किया जिस पर लिखा था अनटिल डेथ, यानी मृत्यु तक साथ निभाएगा। उस पति को एक चाकू गिफ्ट किया जिसे वो एक ड्रग एडिक्ट, एल्कोहलिक और अक्सर मारपीट करने वाला बता रही हैं। कैमिल ने कहा कि मिस हर्ड बताती हैं कि जॉनी हर वक्त उंगलियों में रिंग्स पहनते थे और वो बताती हैं कि उस हाथ से उन्हें उसने थप्पड़ और मुक्के मारे थे और उसकी एक भी तस्वीर उनके पास नहीं है, जबकि और सब तरह की वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटोज वगैरह वो खींचती ही रहती थी। कैमिल ने कहा कि एम्बर ने मार्च 2013 का एक किस्सा बताया जब मिस्टर डेप ने रिंग्स पहने हुए हाथ से उन्हें लगातार मुक्के मारे थे और इस तरह का उनका फेस उसके बाद दिखाई देता है। यहाँ कैमिल ने एम्बर के चेहरे की फुटेज दिखाई थी। इन सब पुख्ता सबूतों से कैमिल ने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट दी। दोस्तों, पूरे केस को साफ शब्दों में कोर्ट के सामने खोल कर रख देना इस बात का सबूत है कि एक कुशल लॉयर का कर्तव्य निभाते हुए कैमिल ने लगभग इस केस का फैसला कर ही दिया। बाकी अब सबसे बड़े फैसले का इंतजार हम सबको रहेगा, जिसमें एम्बर और जॉनी की किस्मत का फैसला अगले हफ्ते जूरी करेगी। आप सबके सवाल थे कि जूरी फैसला कब देगी, तो दोस्तों अब इसके बाद ये केस एक बंद कमरे में सिर्फ जूरी ही डिसाइड करेगी और कब इस पर निर्णय आएगा ये उन लोगों पर निर्भर है कि वो आपसी सहमति से एक निर्णय में कितनी देर में पहुंचते हैं। हो सकता है मंडे को ही इसका फैसला हो जाए या फिर 2-3 दिन बाद, पर अगले हफ्ते में आपको इसकी सूचना मिल ही जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार।